हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप इस पर अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी क्वेरी क्लास में आपका वेलकम स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। हियर इज एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 3xy टर्म्स 4x स्क्वायर and second term is minus 3xy factor 4xx minus 3xy के factor minus 3xy expression 5xy plus 10. There is the two terms 5xy and 10. 5xy के तीन फैक्टर है 5x और y. Like and unlike terms, when terms have the same algebraic factor they are like terms. When terms have the different algebraic fraction they are unlike terms. For example, in expression 2xy minus 3x plus 5xy minus 4, look at the terms 2xy and 5xy. The factors of 2xy and 2x and y. The factor of 5xy are 5x and y. Thus their algebraic factor are the same and hence they are like terms. On the other hand, of the terms 2xy and minus 3x have different algebraic factor, they are unlike terms. Similarly, the terms 2xy and 4 are unlike terms. Also, the terms minus 3x and 4, monomial, binomial, trinomial, and polynomial. An expression with only one term is called monomial. For example, 7xy minus 5m, 3z square, 4, etc. An expression which contains two unlike terms is called a binomial. Example, x plus y, m minus 5, mn plus 4m, a square minus b square are binomial. The expression 10pq is not a binomial. It is a monomial. The expression a plus b plus 5 is not a binomial. It contains three terms. An expression which contains three terms is called a trinomial. For example, the expression x plus y plus 7, ab plus a plus b, 3x square minus 5x plus 2, m plus n plus 10 are trinomials. The expression ab plus a plus b plus 5 is, however, not a trinomial. It contains four terms and not three. The expression x plus y plus 5x is not a trinomial as the terms x and 5x are like terms. In general, an expression with one or more terms is called a polynomial. Thus, a monomial, a binomial, and a trinomial are all polynomials. Now, students, following simple step will help you to decide whether the given terms are like or unlike terms. First, ignore the numerical coefficients. Concentrate on the algebraic part of the terms. Check the variable in the terms, they must be the same. Next, check the power of each variable in the terms, they must be the same. Note that in a deciding like terms, two things do not matter. First, the numerical coefficient of the terms, and two, order in which the variable are multiplied in the terms. Now students, exercise 12.1, get the algebraic expression in the following cases using variables, constant, and arithmetic operation. Subtraction of z from y minus z on one half of the sum of the number x and y, 1 by 2 x plus y. The number z multiplied by itself, z square, and 1/4 of the product of the number p and q, pq upon 4. Number x and y both square and added, x square plus y square. Numbers 5 added to 3 times the product of the numbers m and n, 5 plus 3 mn. Product of the number x and z subtracted from 10, 10 minus yz. Eighth, sum of the numbers a and b subtracted from their product, ab minus a plus b. Now students, question number 2, identify the terms and their factor in the following expression. Show the terms and the factor of the three diagrams. First, x minus 3, 1 plus x square, y minus yq, 5xy square plus 7x square y, minus ab plus 2b square minus 3a square. Second, identify terms and factor in the expression given below. Minus 4x plus 5, 4x minus 4x plus 5y plus 3y square, xy plus 2x square y square,
PQ plus Q, F 1.2 AB minus 2.4 B plus 3.6 A, 3 by 4x plus 1 upon 4 and 0.1 P square plus 0.2 Q square. Now students, there is the first x minus 3, x और minus 3 इसके दो टर्म्स हैं. B 1 plus x स्क्वायर, फर्स्ट 1 होगा x और दूसरा x स्क्वायर, इसके दो फैक्टर होंगे xx. C y माइनस वाई क्यू दिया गया है, y और वाई क्यू दो इसके टर्म है और वाई क्यू का फैक्टर दिया गया है -1 y y y. सिमिलरली D 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, 5xy स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर y. 5xy स्क्वायर के चार फैक्टर है 5xy और 7x स्क्वायर y के चार फैक्टर है 7xxy. E minus AB plus 2B square minus 3A square. There is the three terms and here is the factor of the all terms. Second, here is the row एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके टर्म दिए गए हैं और फैक्टर दिया गया है. स्टूडेंट्स ए में आप देख रहे हैं उसके टर्म्स को अलग कर दिया गया और टर्म्स के भी एक एक फैक्टर को भी अलग कर दिया गया है. तो ये टेबल में बी पोर्शन में भी देखिए, इसमें भी दो टर्म है, दोनों टर्म्स को अलग उनके फैक्टर किए गए. सी में भी दो टर्म है, उनके दो टर्म्स के फैक्टर्स को अलग कर दिया गया. डी में भी दो टर्म है, उनके भी टर्म्स और फैक्टर को अलग कर दिया गया है. और ई में भी आपके दो टर्म है. एफ में आपके तीन टर्म है, तीनों टर्म को अलग कर दिया गया है, उनके फैक्टर को उनके सामने लिखा गया है. जी में दो टर्म है, इसके दो टर्म और दो टर्म्स के फैक्टर भी लिखे गए हैं. और एच में भी जो है दो टर्म है, इनके फैक्टर लिखे गए हैं. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5 माइनस 3t स्क्वायर. आपको एक टेबल बनाया गया है जिसमें जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको दिखाना है. तो अल्जेब्रिक के साथ जो प्रोडक्ट के रूप में है न्यूमेरिकल टर्म दिया गया है -3t स्क्वायर, कोफिशिएंट -3. हियर इज द t का कोफिशिएंट 1 है, t स्क्वायर का 1, tq का 1. x का कोफिशिएंट 1 है, 2xy का कोफिशिएंट 2 है और 3y का कोफिशिएंट 3 है. 100m का 100 है और 1000n का 1000 है. -p स्क्वायर q स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है और 7pq कोफिशिएंट 7 है. 1.2a का 1.2 है, 0.8b का 0.8 है. 3.14 r स्क्वायर का 3.14 है. 2t का l का 2 है और 2b का भी 2 है. y का 0.1 और y स्क्वायर का 0.01 इसके कोफिशिएंट है. Now students, question number 4, identify the terms which contain x and given the coefficient of x. So वो टर्म हमें आइडेंटिफाई करना है. आपको एक टेबल बनाया गया है जिसमें पहले वाले वैल्यू के एक्सप्रेशन को और टर्म्स की वैल्यू को यहाँ लिखा गया है और उसके x का कोफिशिएंट यानी x को छोड़ करके उस टर्म में जो भी वैल्यू है, जैसे पहले वाले में कोफिशिएंट x को छोड़ करके y स्क्वायर है, दूसरे वाले में जो एक्स वाई है हमारे पास दिया गया है तो x को छोड़ देंगे तो -8y है. तीसरे में x के साथ केवल 1 है और चौथे में x के साथ z है और पांचवें में x के साथ 2x के है वैल्यू है. पहले x के वैल्यू 1 है और दूसरे एक्स वाई का कोफिशिएंट x का y है. और यहाँ पर तीसरे छठे वाले में 12xy स्क्वायर जिसमें 12y स्क्वायर का कोफिशिएंट है और xy स्क्वायर का y कोफिशिएंट है. बी में दिया गया आइडेंटिफाई द कंटेंट्स वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट छाटने हैं. तो वाई स्क्वायर वाला टर्म है -xy स्क्वायर, कोफिशिएंट -x. 5y स्क्वायर कोफिशिएंट है 5. 7y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है और -15xy का स्क्वायर का कोफिशिएंट -15x है. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. कहा गया है जिसमें दो टर्म है वो बाइनोमियल है. जैसे पहले वाले में दो टर्म है तो ये बाइनोमियल है. सेकेंड वाले में केवल एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल है. थर्ड वाले में तीन टर्म है, ट्राइनोमियल है. फोर्थ में एक टर्म है इसलिए मोनोमियल है. फिफ्थ में तीन टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल है. सिक्स्थ में दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल है. सेवेंथ में भी दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल. एट्थ में एक टर्म है इसलिए मोनोमियल. नाइन्थ में तीन टर्म है ट्राइनोमियल. टेंथ में दो टर्म है बाइनोमियल. 11th में दो टर्म है बाइनोमियल और 12th में तीन टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल है. Question number 6, state whether the given pair of the terms is of the like or unlike terms. Here is the first is like terms. second में भी algebraic expression x है, like term है. थर्ड में भी algebraic expression x और एक में y है इसलिए unlike है. फोर्थ में भी एक्स वाई और वाई एक्स है, दिस इज लाइक टर्म है. फिफ्थ में भी एम स्क्वायर पी है और एम पी स्क्वायर, ये अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए अनलाइक है. सिक्स्थ में भी एक्स जेड है और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये भी अनलाइक टर्म है. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग. इसमें आपको लाइक टर्म को छाटना है. तो ए में आपका
दिया गया है माइनस एक्स वाई स्क्वायर कॉमा 2xy स्क्वायर कॉमा माइनस 4y(x²) कॉमा 20x² कॉमा 8x² कॉमा माइनस 11x² कॉमा माइनस 6x², 7y कॉमा y एंड 100x कॉमा 3x और माइनस 11xy कॉमा 2xy, ये इसके लाइक टर्म है। अब इसमें जो है बी वाले में देखिए माइनस p² q² कॉमा 12p² ये लाइक टर्म है, माइनस 23 और 41 लाइक टर्म है, माइनस 5 कॉमा 701p² लाइक टर्म है, 13p² और यहाँ पर p² आपके दिए गए हैं, ये लाइक टर्म है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग हमारी वीडियो। आपने हमारी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ग्राफिक्स दिए गए हैं ये केवल आपके इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए हैं, अतः स्टूडेंट्स आप इसे अन्यथा न ले, केवल आपके इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाने के लिए किया गया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप इसी प्रकार से मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बी हैप्पी।